वेलकम। चैप्टर 2 समराइजिंग डेटा। तो आज हम न्यूमेरिकल डेटा को कैसे एग्जामिन करते हैं उस चीज को देखने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर में हमने देखा कि डेटा क्या होता है, वेरिएबल्स, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, न्यूमेरिकल, उन दोनों की न्यूमेरिकल में दो चीजें, और इसी तरह से कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल में फिर दो चीजें। और हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, रेप्लिकेशन, ब्लॉकिंग, ग्रुपिंग, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, ट्रीटमेंट इफेक्ट क्या होता है, क्यों, कैसे हम जो है वो अपना स्टडी को डिजाइन करते हैं, रिसर्च स्टडी को कैसे डिजाइन करना चाहिए, और डेटा मैट्रिक्स क्या होता है, डेटा जो है वो जो हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आता है वो किस फॉर्म में होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली चैप्टर 1 में। अब डेटा आ गया। डेटा सेट्स बड़े लार्ज होते हैं, मिलियंस ऑफ रोज हो सकती हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। वो अगर आप पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, तो वो ज्यादातर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे तो कॉन्टिन्यूस और कैटेगोरिकल दोनों मिक्सचर हो सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज में कॉन्टिन्यूस, कैटेगोरिकल, इस तरह से। सो यू हैव सो many data sets and you may have a very small data set, a lab in biological sciences, and you can have a survey from thousands of households or even hundreds of thousands of households. So, and even sometimes a very huge data, which we call big data, but at the moment we are not talking about. So how to examine that numerical data? That's the question. How to make sense of that data? That's the main essence of today's chapter. So you see, this is basically a website. If you go to gapminder.org, gapminder.org provides you best information about sustainable development goals and the progress which world has been making over the last 75 years, 80 years. So go and visit that. At the moment we are talking about that, this is your children per woman, and this is your life expectancy. These colors represents continents. Blue is your Africa, light blue is Asia, red is South Asia, red is basically this East Asia, and you can go and see. But here what we are observing, that you have two numerical variables and there is a scatter plot. In general, what do we notice, that when number of children born to a female are more, your life expectancy is lower. So in general, what we are observing, that more the number of children, lower the life expectancy. Although I am not making any causal conclusion from here, so these are negatively associated. That if you have fewer number of children, life expectancy in those countries is higher. There may be some other factors, income and all that. We are not at the moment in causal language. So if you have numerical variables and both are numerical, try to see their relationship by using a scatter plot. How we make this scatter plot, we'll see in Excel, R, Jamovi, and Stata. I'll do a lab in that. Okay, if you have a single variable, how to monitor that, how to get some information about that, then one way of doing that is called dot plot, or we can see, we'll see later on some more graphs as well. So this is your GPA, and these dots color, basically this shows intensity. You can call it intensity map, you can call it heat map. That is not at the moment our topic. So a darker color indicates that there are more number of students who have this sort this score. For example, this one, this is very dark color. This here we have dark color. So more number of students are, means more than one student is having this number. तो अब हमने देखना है कि जी हम इस चीज को किस तरह से लेके चल सकते हैं। तो इससे आपको डेटा की शेप पता चल रही है, सेंटर पता चल रहा है, स्प्रेड पता चल रही है। तो देखिए तीन चीजें, मैंने कहा डेटा का सेंटर, किस, वो डेटा जो है उस वो किस नंबर के अराउंड ऑन एवरेज रिवॉल्व करता है। डेटा की शेप,
क्या वो सेंटर से नीचे बहुत सारी वैल्यूज हैं, या सेंटर के दोनों साइड्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वो स्प्रेड बहुत ज्यादा है या वो स्प्रेड कम है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी गेट by summarizing data, and these sample mean is measured as this one. You all know I am using here two terminologies. One is statistic, another one is parameter. याद रखिए पैरामीटर्स कभी नॉन नहीं हुआ करते। पैरामीटर्स जो है ये पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पॉपुलेशन जो होती है ये तो यूजुअली हमारे पास स्टडी की नहीं जा सकती होती, तो इसलिए हम जो पॉपुलेशन को की जो वैल्यू है उसको गेस किससे करते हैं, सैंपल से। तो जो सैंपल से वो वैल्यू गेस करते हैं उसको हम कह देते हैं स्टेटिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटी में 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो अब 20,000 के 20,000 को मैं स्टडी नहीं कर सकता, तो मैं उसमें से 200, 300, 50, 100, 200, वो फिर आगे चल के कोर्स के लास्ट पार्ट पे देखेंगे कि सैंपल साइज कैसे लेना है। तो मैं वहां से 200 का सैंपल लिया। अब वो जो 200 का अगर रैंडम सैंपल लिया, जो लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, तो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ तो मैं जो गेस कर रहा हूं वो जो सैंपल मीन आएगा वो किसके बारे में आएगा, वो वैल्यू देगा, वो एक लिहाज से गेस देगा पॉपुलेशन मीन के बारे में। तो पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन मीडियन एंड ऑल अदर पॉपुलेशन समरी स्टैट्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स। सैंपल से रिलेटेड जितनी मेजर्स हैं वी कॉल देम स्टेटिस्टिक। तो ये एक पॉइंट एस्टिमेट है, फिर आगे चल के इसको देखते हैं। अब ये देखिए अगेन हमारा जीपीए है, डॉट प्लॉट्स कि 3.4 जीपीए किन लोगों का है, तो वो 1 2 3 4 यू कैन काउंट देम, एंड यूसी जो है वो आपके पास किस तरह से ये चल रहा है। तो आपको एक शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रही है कि ज्यादातर लोग जो है उनका CGPA 3.4 और 3.8 के राउंड कंसंट्रेटेड है, या अबव 3.4 है। तो दिस गिव्स यू शेप, आपको सेंटर भी आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, और आपको स्प्रेड का भी अंदाजा हो रहा है कि जी जनाब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह यहाँ इस तरफ भी हैं। ठीक है, तो मेनी आर इन विद 4 CGPA। अब अगर कंटिन्यूस वेरिएबल हो, अगर कंटिन्यूस वेरिएबल हो तो हम एक उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कंटिन्यूस वेरिएबल हो तो हिस्टोग्राम बनाते हैं, अगर कैटेगोरिकल डेटा हो तो हम बार चार्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, एक बिन विड्थ है। बिन विड्थ को आम रूटीन में जब स्टैट्स में जब इसमें पढ़ाते हैं तो हम कह देते हैं क्लास इंटरवल है। तो ये क्लास इंटरवल यानी कि यहाँ पे बिन विड्थ कितनी है, 10 की बिन विड्थ है, 10 की बिन विड्थ है। और नंबर ऑफ बिन्स क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिन्स है यहाँ पे। तो ये अब आपने वेरी करनी होती हैं, थोड़ी बहुत आपने अपनी प्रैक्टिस के लिहाज से 5 और 20 25 30 के दरमियान कोई बिन्स रखनी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना डेटा है, ताकि आपको ये ताकि उस डेटा की थोड़ी बेहतर आपको सेंस हो सके। तो बिन विड्थ एक्सेल, आर, स्टेटा, हर जगह पे वो आपको पूछेगा कि आप इसको वेरी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एनीहो, अब ये डेटा डेंसिटी प्लॉट आ गया। अब यहाँ पे हमें अंदाजा हो रहा है कि ज्यादातर जो है 150 ऑब्जर्वेशंस जो है वो रफली 0 और 10 के दरमियान में है। तो रफली 40 के करीब ऑब्जर्वेशंस जो है वो इसमें है, इसमें है, और कुछ ऐसी भी हैं, वेरी फ्यू ऑब्जर्वेशंस आर इवन 60 to 70। ये वो चीज है कि जी नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट्स स्पेंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर वीक। अब ये नंबर ऑफ बिन्स जो मैंने कहा, या ये बिन विड्थ जो है ये कितनी होनी चाहिए, याद रखिए बिन विड्थ इतनी छोटी ना कर दें कि सारा डेटा एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो जाए, तो उससे सारी इंफॉर्मेशन हाइड हो जाएगी, तो ग्राफ बनाने का पर्पस नहीं रह जाएगा। और बिन विड्थ इतनी ज्यादा नहीं बना दें कि वो डेटा उतना ज्यादा कि वो तकरीबन हर बिन में 2 4 6 वैल्यूज आ रही हैं और आपके पास 200 1000 2000 बिन्स बन गए, तो दैट आल्सो डज नॉट मेक सेंस। तो एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ बिन्स, तो आप देखें यहाँ हमने सिर्फ दो बिन्स बनाई, 1 और 2, 50 50 की दो बिन्स हैं। यहाँ पे वही जो पिछले वाली है,
यहाँ पे आपके पास जो है वो 5 5 की बिन्स हैं। तो दिस सीम्स मोर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे टू मच है, सो क्रॉस। यहाँ ठीक है थोड़ी सी हैं, लेकिन यहाँ बहुत थोड़ी हैं। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शंस क्रॉस करके वी प्रेफर टू बी विद दिस। लेकिन ये आपने वेरी करना होता है अपने डेटा के लिहाज से, और बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब मैं लैब करवाऊंगा तो उस वक्त जो है वो यहाँ पे डेटा की हेल्प से आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। अब देखिए, एक चीज होती है मोड। आपको पढ़ा होगा कि जी जो नंबर ज्यादा दफा आता है या जहां पे सबसे पीक होती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास, अगर इसको मैं, तो ये इस तरह की चीज बन रही है। अगर इसको देखूं तो ये इस तरह की चीज। सॉरी अगर ये लाइंस जो है वो थोड़ी सी गलत हैं। तो ये देखिए, एक, दो, तीन मोड बन रहे हैं। ये तकरीबन मोर और लेस कोई मोड नहीं बन रहा। तो ये बेसिकली आपको पता चलता है कि जी ये यूनिफॉर्म है, बाई मॉडल है, ठीक है, ट्राई मॉडल है। तो एक ही पीक है डेटा की, या कि कोई खास पीक नहीं है, या कि दो पीक्स हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क फॉर बाई मॉडल। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि डेटा सिक्यूर्ड है। सिक्यूर्ड का मतलब ये है कि वो डेटा सेंटर से इक्वल दोनों साइड्स पे डिस्पर्स नहीं है। तो ये अगर आप देखें तो ये डेटा राइट सिक्योर्ड लग रहा है, राइट पे टेल लॉन्ग है। ये डेटा लेफ्ट सिक्योर्ड लग रहा है क्योंकि लेफ्ट पे टेल लॉन्ग है। और ये डेटा शायद सिमेट्रिकल टाइप बन रहा है। अच्छा, अब देखिए कि डेटा की प्लॉट से हमें ये भी आइडिया होता है कोई बहुत अनयूजुअल वैल्यूज तो नहीं है। अब अनयूजुअल वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो रॉन्ग ही हों। कभी वो टाइपो एरर हो सकता है, कभी वो जेन्युइन आउटलायर्स हो सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत एक अनयूजुअल वैल्यूज यहाँ पड़ी हुई हैं, शायद लग रहा है। और इसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो सिक्यूनेस की तरफ चली जाती हैं। तो नंबर ऑफ आवर्स पर वीक स्टूडेंट स्पेंड ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो ये राइट सिक्यूर्ड है। और ये जो है वो आपके पास कुछ अनयूजुअल ऑब्जर्वेशंस भी मौजूद हैं। सो दिस इज, इस हिस्टोग्राम हमें ये आइडिया देती है। मोडेलिटी अभी मैंने बात की थी। तो ये देखिए यूनी मॉडल है क्योंकि हमारे पास एक ही पीक है। ये देखिए बाई मॉडल है, दो पीक आ गई। ट्राई मॉडल हो गया, या मल्टी मॉडल, उसने जनरल वर्ड हम यूज कर देते हैं। नो दिस इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस कि जी बस हर ऑब्जर्वेशन आने के बराबर के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी में जाके देखेंगे सिक्योरनेस। तो ये देखिए राइट सिक्योर्ड होगी, दिस इज लेफ्ट सिक्योर्ड, दिस इज सिमेट्रिकल। हाँ जी, अब बात आती है कि विच ऑफ दीज वेरिएबल्स डू यू एक्सपेक्ट टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वेट ऑफ अडल्ट फीमेल्स। भाई वेट ऑफ अडल्ट फीमेल्स में तो ये होगा कि एवरेज के अराउंड सबसे ज्यादा फीमेल होंगी। फिर जो थोड़ी सी कम वेट होता जाएगा वो कम होती जाएंगी, बहुत बल्कि जो फीमेल है वो भी कम होती जाएंगी। तो सेंटर में पीक होगी। तो इसलिए यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकती कि जी जितनी जो है जिनका वेट जो है वो 60 kg है या 58 kg है, या वो, तो वो इक्वल होगा नहीं। जो आपका एवरेज के करीब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, नंबर ऑफ फीमेल्स हैविंग एवरेज वेट, वो सबसे ज्यादा होगा। नंबर ऑफ फीमेल्स में बात कर रहा हूँ। इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बिन विड्थ होंगी कि इस रेंज में कितनी फीमेल है जिनका ये वेट है, इस रेंज में कितनी है, इस रेंज में कितनी है। सैलरी ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना। भी सैलरी जो है ये इन जनरल, इनकम जो है ये इन जनरल राइट सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वजह यह है कि लो अर्नर इनकम वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, और वेरी हाई अर्निंग इनकम वाले लोग भी होते हैं, बट दे आर फ्यू इन नंबर, उनकी अर्निंग ज्यादा होती है। हाउस प्राइसेस भी इसी तरह से सिक्योर्ड होंगी, ये इस तरह से। लेकिन बर्थडे आप किस दिन पैदा हुए हैं, किसी महीने की किसी एक डे पे, तो दैट सीम्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप स्केच कीजिएगा, सोचिएगा, वर्कआउट कीजिएगा। हाँ, आपके सामने है। आपने ये नेशनल ज्योग्राफी का है, मैं इस वक्त प्ले नहीं कर रहा। आप इसको प्ले कीजिएगा एंड सी कि इस वक्त का एवरेज पर्सन किस तरह का दिखाई देता है। 2030 का एवरेज पर्सन क्या होता है, और एवरेज क्यों मिसलीडिंग होती है, इस पे फिर मीन क्यों मिसलीडिंग होता है, इस पे कभी बात करेंगे।
एक्चुअली एवरेज तो आ गई, मीन हमने कहा जी सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अगला सवाल ये होता है कि मीन तो दो डेटा का सेम हो सकता है, लेकिन एक डेटा में स्प्रेड ऐसे दूर तक फैली हुई है, एक डेटा में स्प्रेड सारी यूं होती है, फाइनेंशियल डेटा में भी ऐसे ही होता है। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, हम डेटा की सेंटर के राउंड स्प्रेड को मेजर करने के लिए क्या चीज देखते हैं, हम वेरियंस लेते हैं। वेरियंस, अब यहां पे अगेन एक है पॉपुलेशन वेरियंस, पॉपुलेशन वेरियंस इज कॉल्ड पैरामीटर, सैंपल वेरियंस इज कॉल्ड सैंपल स्टेटिस्टिक। तो ये वेरियंस जो है, अब जैसे मीन जो है वो क्या आया 6.71, कितना सैंपल था 217। सैंपल वेरियंस क्या होगा, हर वैल्यू में से मीन को माइनस करते जाओ, पहली वैल्यू 5 थी उसमें से मीन को माइनस करो स्क्वायर करो, दूसरी वैल्यू 9 थी सेम मीन माइनस करो स्क्वायर करो, सेम लास्ट वैल्यू 7 थी मीन माइनस करो। और ये सिस्टम ने करना होता है, इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा मैं फोकस नहीं किया करता। तो ये अब देखिए ये क्या आ गया 4.11 आवर स्क्वायर। अब आवर स्क्वायर जो है ये कोई यूनिट है नहीं है, यानी कि रूपी स्क्वायर डॉलर स्क्वायर ये कोई यूनिट है नहीं है, मीटर स्क्वायर तो समझ आती है। तो अब इसको रूटीन के यूनिट में मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरियंस हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है कि जी ये सेम यूनिट में ताकि डेटा हो जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। क्योंकि आपने पॉजिटिव स्क्वायर लिए थे तो इस वजह से उसका आप स्क्वायर रूट लेना है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही होगा। तो ये देखिए हम ये कह रहे हैं 2.3 आवर्स, तो हम कहते हैं 6 आवर्स एवरेज है, और इस एवरेज से आप रफली 2.3 आवर्स जो है वो आपके पास जो है वो चल रहा है। तो विद इन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर आ रहा है, ये बातें हम जब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे। लेक्चर लंबा हो रहा है, आप इसको स्किप करके, आप पॉज करके आप किसी और टाइम पे ले सकते हैं। एनीहो विल कंटिन्यू फॉर अनदर 10 मिनट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज है कि जी ये आपके पास स्प्रेड अराउंड एवरेज है, स्प्रेड अराउंड सेंटर है, उस चीज को मेजर करती है और रूटीन के उसी यूनिट में मेजर करती है जिस यूनिट में वो वेरिएबल मेजर हुआ है, दैट्स व्हाई वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब एक चीज होती है मीडियन। मीडियन क्या होता है, अगर ऑड वैल्यूज हो तो जो सेंट्रल वैल्यू होती है, और अगर इवन हो तो मिड टू का जो है वो एवरेज हो जाती है। और चूंकि 50% ऑफ द वैल्यूज लाई बिलो दैट, 50% ऑफ द वैल्यूज लाई अबव दैट, तो इसलिए वी कॉल इट 50th परसेंटाइल। अगर आप क्लास में ऐसे ऐसी पोजीशन पे हैं कि आपसे सिर्फ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स अबव हैं और 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का स्कोर आपसे कम है, तो आप 90th परसेंटाइल पे होंगे। आपकी रैंकिंग, असल में रैंकिंग जो है वो परसेंटाइल होता है। परसेंटेज नंबर आपके कितने आए हैं, हो सकता है आपके 60% नंबर आए हों, लेकिन आपके से फर्ज करें 100 की क्लास थी, सिर्फ 10 लोगों ने ऊपर नंबर स्कोर किए, 89 लोगों ने नीचे स्कोर किया, तो आप 90th परसेंटाइल पे होंगे। अगर 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ने आपसे ज्यादा स्कोर किया, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ने आपसे कम स्कोर किया है, तो आप मीडियन पे होंगे 50th परसेंटाइल पे। अगर 25% ऑफ द स्टूडेंट्स ने आपसे ऊपर स्कोर किया है 70, तो आप 75th परसेंटाइल पे होंगे। इसी तरह से आप 25th परसेंटाइल पे होंगे। या तो ये बेसिकली इसको परसेंटाइल या क्वार्टाइल्स अगर चार हिस्सों में करेंगे, तो जो 25th परसेंटाइल है उसको हम Q1 कहते हैं, जो 50th परसेंटाइल है उसको हम Q2 कहते हैं। ठीक है जी, तो वो अभी हमारी बात होगी, तो उसको हम Q2 कहते हैं। और जो 75th परसेंटाइल है उसको हम Q3 कहते हैं। तो अगर डेटा, अभी बात आती है, अगर डेटा में इश्यू होगा, वो डेटा सिक्योर्ड होगा, वो लेफ्ट सिक्योर्ड हो या राइट सिक्योर्ड हो, तो हम क्या करते हैं, वी स्प्रेड अराउंड सेंटर मेजर करने के लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज लेते हैं। वेरी यूजफुल ग्राफ इकोनॉमिक्स के लोगों के लिए, सोशल वेरिएबल्स के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। क्योंकि हमारा जो डेटा होता है, इनकम, सैलरी, वेजेस, मनी, ये सारा मोस्टली सिक्योर्ड डेटा होता है।
तो इसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से समराइज करना कोई बहुत प्रेफरेबल चीज है नहीं है, मिसलीडिंग हो सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी दिस इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड Q1, दिस इज योर मीडियन, दिस इज योर Q3। अभी मैंने कहा था Q3 क्या होता है, और दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, एंड दीज आर कॉल्ड पोटेंशियल आउटलायर्स। हैव अ लुक एट दिस स्लाइड बिफोर वी मूव नेक्स्ट। फाइन। तो आप देखें, तो लोअर विस्कर Q1, मीडियन Q3, अपर विस्कर और सस्पेक्टेड आउटलायर्स। विस्कर तो ये जो वैल्यू Q3 प्लस 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज से ज्यादा होगी, तो वो बेसिकली आपके पास जो है वो सस्पेक्टेड आउटलायर्स में होंगी। ये क्या है, Q3 प्लस 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज, या जो वैल्यू उससे नीचे होंगी, नीचे वाली साइड पे हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू से नीचे भी आउटलायर्स हो सकती थी, वो है नहीं इस डेटा में। तो जो वैल्यू 35 से ज्यादा हो या -5 से कम हो, तो वो सस्पेक्टेड आउटलायर होगी। अब आउटलायर्स पे बहुत डिटेल में बात होगी, एट द मोमेंट नहीं बात हो सकती। आउटलायर पे अगर बेस्ट बुक पढ़नी है, वन ऑफ द बेस्ट, चले मैं बेस्ट नहीं कह सकता, वन ऑफ द बेस्ट, तो वो ब्लैक स्वान है बाय निकोलस नसीम तालब। ठीक है, ब्लैक स्वान। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर आउटलायर्स? तो इससे हमें ये पता चलता है हमने कोई टाइपो एरर तो नहीं कर दिया, हमने वेट फीमेल का 100 पाउंड्स की बजाय 1000 पाउंड्स तो नहीं एंटर कर दिया। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई डेटा कलेक्शन एंड एंट्री एरर्स होता है, और समटाइम्स जेन्युइन आउटलायर्स भी होती हैं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन हो गई, आपके पास जो है बहुत बम्पर क्रॉप हो गई पिछले 20 साल में, और आज तक भी, और उससे आगे भी 10 साल नहीं हो रही, तो देर देर कैन बी जेन्युइन आउटलायर्स एज वेल। तो ये बेसिकली आप देखिए, तो प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट। अब जो मीन होता है ना, याद रखिए मीन जो है ये स्मॉल वैल्यू से, ये बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज वैल्यू से इफेक्ट होता है। कैसे? आप सारे अपनी नोट्स में 1 से लेके 5 तक वैल्यूज लें, उसका मीन निकालें, 1 2 3 4 5, और उसमें 1000 ऐड कर लें, देखिएगा मीन किधर चला जाता है। लेकिन अगर आप उसी में 1 2 3 4 5 और उसमें 1000 करें ऐड, तो पहले मीडियन जो था वो 3 रहेगा, अब मीडियन जो है वो ज्यादा ज्यादा 3 और 4 का सेंटर 3.5 आ जाएगा। तो मीडियन जो है ये रोबस्ट मैयर है। तो वो ये पूछ रहा है आपसे कि अगर $10 मिलियन लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो क्या होता है, और अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू को लार्ज $10 मिलियन से रिप्लेस कर दें तो क्या होता है। तो मीडियन जो है वो काफी हद तक अनचेंज रहेगा, जबकि मीन जो है ये बहुत ज्यादा चेंज होगा। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। जब मैं कहीं लैब करूंगा तो आई डेमोन्स्ट्रेट। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको थिंक करना है, वाई इज इट सो, वाई इज इट सो, क्योंकि इसमें अगर मैं यहाँ पे करना शुरू करूंगा तो इट विल गेट टू लॉन्ग। तो मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो रोबस्ट हैं। उसकी वजह देखिए, मैं दोबारा से देखिए, अगर आप फर्ज करें 25% ऑफ द स्टूडेंट्स ने आपसे कम स्कोर किया है, और एक और स्टूडेंट है जिससे 25% ऑफ द स्टूडेंट्स ने ज्यादा स्कोर किया है, तो अब अगर नीचे वाले स्टूडेंट का स्कोर रिवाइज हो जाए और नीचे, तो भाई आप तो वही 25th परसेंटाइल पे रहेंगे। और इसी तरह से अगर ऊपर वाले स्टूडेंट का स्कोर रेट हो जाए उससे बहुत ज्यादा ऊपर, तो आपकी पोजीशनिंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम एवरेज करते हैं तो एवरेज में तो चीजें ऐड अप हो रही हैं, तो उस स्टूडेंट का स्कोर जब उस पहले वाले स्कोर्स में ऐड होगा तो मीन जो है वो शिफ्ट होगा, और इसी तरह से या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मीडियन इनकम रिपोर्ट करनी चाहिए रादर देन मीन इनकम, क्योंकि मीन इनकम में क्या होता है कि अगर फर्ज करें आपने बिल गेट की, वो मार्क जकबर्ग की, वो क्या है ये जो टेक्नोलॉजी वाला है, इलान मस्क की, अगर आपने इनकी इनकम ऐड कर दें तो एवरेज इनकम तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन मीडियन इनकम तकरीबन वहीं पे रहेगी। दैट्स वाई ये जो अगर तो सिमेट्रिक डेटा हो तो हम मीन
से डेटा को और स्टैंडर्ड डेविएशन से समराइज कर लेते हैं। लेकिन अगर डेटा आपका सिक्योर्ड हो, जैसे राइट सिक्योर्ड है, तो मीन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लार्ज वैल्यूज की तरफ, तो मीन ग्रेटर हो जाएगा मीडियन से। और अगर लेफ्ट सिक्योर्ड है तो बेसिकली मीन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो प्लीज इस पे सोचा कीजिए, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि मीन क्यों शिफ्ट हो जाता है और मीडियन वहीं पे रहता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि जी लार्ज कौन सा है, राइट स्मॉल कौन सा है। ओके, हैव अ लुक एट दिस। आई होप टू हैव वन और टू मोर स्लाइड्स, देन हम इसको स्टॉप कर देंगे, फिर अगले वाला पार्ट नेक्स्ट में। आपका क्या ख्याल है, मीन किधर शिफ्ट हुआ? तो मीन ने तो शिफ्ट होना है लेफ्ट सिक्योर्ड पे, और मीडियन ने तकरीबन वहीं रहना होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मीन छोटा हो गया मीडियन से, तो मीन, दिस शुड बी द रिजल्ट। व्हेन डेटा आर एक्सट्रीमली सिक्योर, तो फिर हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। मैं इनकम का लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लेके दिखाऊंगा कि सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जो है वो सिमेट्रिक हो जाती है। तो लेट्स स्टॉप हियर एंड देन हम इससे अगले वाली चीजें कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज बी विद मी। अगर आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स या क्वांटिटेटिव रीजनिंग फॉर सोशल साइंसेस मेनली, बाकी लोग भी देख सकते हैं, अगर आपको इसको इसकी एसेंस लेनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा फार्मूलाज कैसे कैलकुलेट होते हैं वो फार्मूलाज पे नहीं जाऊंगा। तो इसलिए प्लीज़ बी विद मी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।